आणि पुनश्च एकदा हार्दिक अभिनंदन सिंगम 11चं. आणि आता पाहूयात आजचा शेवटचा सामना रोरिंग लायन्स विरुद्ध स्मार्ट रायडर्स. लेट्स मूव्ह बॅक टू द लाईव्ह टेलिकास्ट. फ्लीट गार्ड फिल्टरूम प्रीमियर लीग सीझन 10. जोरदार अपील झालेलं आहे आणि ते यशस्वी अपील झालेलं आहे आणि विकेट पडलेली आहे. सलमानने घेतलेला उत्कृष्ट झेल आणि पहिल्या षटकात यश गोलंदाजी करणाऱ्या टीमला. अरे पॉइंटच्या दिशेने एक फटका आणि एक धाव घेतलेली आहे आणि आरंभी यश मिळालेलं आहे त्या तिथे रोरिंग लायन्सला. टॉस जिंकून त्यांनी बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. पण आजची विशेषता बघा, कुठलीही टीम दुसरी बॅटिंग करणारी आज जिंकलेली नाहीये. त्यामुळे हा निर्णय जरा थोडासा अजब वाटतो. प्रत्येक बॅटिंग पहिली करणारी टीम जिंकलेली आहे. And that's why it is surprising that captain after captain have decided to actually win the toss and bowl first. थोड़ाफार दव आला असेल, ड्यू जिसे हम कहते हैं. थोड़ी सी हवा में जो नमी होती है वो जो मैदान पर
उतर जाती है तो थोड़ा बहुत फिसलना होता ही है भाई, काफी ये घातक हो सकता है फील्डिंग करने वाले खिलाड़ियों के लिए, काफी बड़ी जख्म भी हो सकती है, चोट पहुंच सकती है, संभालना पड़ता है इसके खिलाफ। अच्छे स्पाइक वाले जूते पहनना। अंपायर का इशारा स्कोरर की तरफ। इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया है अब रोरिंग लायंस ने। बहुत ही बढ़िया एक बैकफुट कट कर दिया है और ये चौका, बिल्कुल बैकवर्ड पॉइंट की एरिया में एक चौका। बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट थी, बहुत ही अच्छी तरह कट किया बैकफुट पर जाकर, एक डिलेड स्क्वेअर कट मारा है आणि सुंदर एक चौकार त्या तिथे स्मार्ट रायडर्सचा। एक विकेट गमावली असली तरी तन्मयता आणि तत्परता तेवढीच आहे स्मार्ट रायडर्सची। दे आर वेल इन 6 overs. It really doesn't matter if you lose wickets at the top. All that matters is that you have to put up a good score. And today even a score of 47 has turned out to be good, as we saw in the last match. Singham 11 posting 50, 47. Then Fleetguard Pulton posting 51. और ये दोनों टीम ने अपना लो स्कोर 51 और 47 का डिफेंड किया था, यानी चेस करने वाली टीम उतना भी नहीं बना सकी। और उसके बिल्कुल विपरीत ये टीम थी राइजिंग स्टार्स की। उन्होंने तो टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था 133, जिसमें शुक्राज सूर्यवंशी ने 64 रन बनाए थे केवल 19 गेंदों में। सो भाई पिच बढ़िया है, जैसे आप खेलेंगे वैसा आपका स्कोर बनेगा। शॉर्ट पिच बॉल और बढ़िया पुल किया है उस इलाके में, स्क्वायर लेग की दिशा में कोई नहीं, सारे फील्डर ऊपर, बाउंड्री पर कोई नहीं है। एंड दैट्स अ वंडरफुल बाउंड्री इन द स्क्वायर लेग एरिया। एज पर द टूर्नामेंट रूल्स वी हैव टोल्ड यू, the fourth over of every bowling innings is a Fleetguard 10th anniversary special over, which we call the magic over. Every run scored in the fourth over is doubled and added to the batting team. But if the batting team loses a wicket, then they have to forsake 5 points. That is, 5 points are minused from their total. And actually, the actual reduction is not there. It's just that 5 runs are added to the opposition's total. Opposition that is chasing or opposition that is defending. Making a connection, ball going into the mid-wicket area. And that's unfortunate. One fielder misfielding, and that's a boundary. Well, a misfield by one fielder, second fielder could not do backup there, and a boundary there. So moving on to 26 for 1 are Smart Riders. Smart play currently. And that's an outside edge, a keeper coming underneath, and he drops it. Oh my God. Even with the biggest of the wicket-keeping gloves, many catches have been dropped today, but this one is the most surprising, considering that the wicketkeeper has the biggest pair of gloves. Everybody else has to use their plain hands. But it's the fortune of the batsman on strike. And now getting an under edge, ball running away. And a fine leg fielder does a good job of just preventing it from going to the boundary. And 2 runs are taken. So 28 runs, 1 wicket, and we are just in the third over. 2.5 overs gone. 1 wicket, a good catch taken by Salman for Roaring Lions. Wicket keeper doesn't make a mistake. Trying to go for an on drive, getting an edge.
And the keeper jumping up and taking a good catch. Salman, well, fortune came back to smile at him after that one drop. He got an opportunity again in the same over. So the bowler is happy, the wicket keeper is happy, the captain is happy. And the batsman out is definitely sad. Well, there it is. It's रन बनाए जाएंगे, उसको दुगना किया जाएगा ओवर के बाद और वो टोटल बैटिंग टीम के टोटल में उसका इजाफा किया जाएगा, ऐड किया जाएगा. अगर बैटिंग टीम विकेट खोती है तो 5 रन उनके टोटल में से कम किए जाएंगे और ऑपोजिशन टीम के टोटल में डाले जाएंगे. तो नए बल्लेबाज ऋषिकेश जो है वो अब नॉन स्ट्राइकर एंड पे है. ओवर खत्म हो चुकी थी. देखेंगे चौथा ओवर डालने आया है नया बॉलर सलमान शेख जो कि विकेट कीपर थे. अब उन्होंने विकेट कीपिंग के ग्लव्स किसी और को दिए हैं और ग्लव्स को फिलहाल विकेट कीपर इस्तेमाल नहीं कर रहा है. सलमान शेख विकेट कीपर इज नाउ बॉलिंग ऍक्च्युअली. आणि हर हुन्नरी व्यक्तिमत्व दिसतंय सलमान शेखचं. विकेट कीपिंग करत होता पण आता तो बॉलिंग करायला आलेला आहे आणि नवीन विकेट कीपर ग्लव्सची त्याला सवय नाही आहे बहुतेक तो तसाच कीपिंग करतोय. आणि मिसफिल्ड नव्या कीपरकडून एक धाव मिळालेली आहे. 29 धाव संख्या. आता एक धाव म्हणजे आता ही 2 झाली. मॅजिक ओव्हरमध्ये डबल होतो स्कोर आम्ही सांगितल्याप्रमाणे. ओ सुरेख फटका लॉंग ऑफच्या दिशेने थोडा वाईड लॉंग ऑफच्या आणि कव्हर बाउंड्रीच्या मध्ये एक उत्तुंग षटकार. ओव्हर पिच बॉल होता आणि जबरदस्त षटकार. आणि हा चेंडू थोडा आखूड टाकलेला आहे. लिटिल शॉट. बॅट्समन ट्राइंग टू पुल इट नॉट मेकिंग एनी कॉन्टॅक्ट. सो लेट्स सी. There are 3 fielders guarding the leg side boundary. We have long on, mid wicket, a square leg, and a wide ball by Salman. Then we've got a short third man. These are the 4 fielders on the leg side. Sorry, that's a short fine leg, not a short third man, short fine leg. परत एकदा एक डॉट बॉल टाकण्यात आलेला आहे. थर्ड मॅन आहे तिथे. पॉइंट ला एक खेळाडू आहे. कव्हर मध्ये खेळाडू आहे. एक एक्स्ट्रा कव्हर आहे आणि एक लॉंग ऑफ आहे. अशी व्यूहरचना आहे. समान प्रमाणात 4 क्षेत्ररक्षक ऑफ साइडला, 4 लेग साइडला. 4 नाही 5 आहेत, माफी असावी ऑफ साइडला. परत एकदा मिस हिट. नॉट मेकिंग कॉन्टॅक्ट विथ द बॉल. And I guess the score is now 50 up for Smart Riders after 4 overs. अकरा धावा त्यांनी केल्या या मॅजिक ओव्हरमध्ये. त्याचे आता 22 रन झालेले आहेत म्हणजे दुप्पट झाले. विकेट त्यांनी घालवली नाही आहे त्यामुळे आता 50 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत. निलेश घोलप आता नवीन गोलंदाज आहे. रोरिंग लायन्स साठी गोलंदाजी करण्यासाठी आलेला आहे निलेश घोलप.
तो इम्पॅक्ट प्लेअर आहे का? या इथे एक थोडासा संभ्रम आहे. The umpire is trying to sort out. There's a discrepancy here. It seems like Nilesh Golub, the bowler who's come, his name was not given in the playing 11. He was not nominated as an impact player as well. So by that rule, I don't think Nilesh Golub will be able to bowl now. Let's see what the umpire. Yes, the bowler has been changed, I think. Let's just find out. Okay, so Amol Shirsat has been replaced by Nilesh Golub. Now Nilesh Golub, they're treating him as an impact player. That is what the umpire has decided. निलेश गोलपला आता इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून घेतलेला आहे रोरिंग लायन्सने. अमोल शिरसाट बाहेर गेलेले आहेत आणि वाईडने सुरुवात केलेली आहे निलेश गोलपने. लेग साइडच्या मागे टाकलेला चेंडू, व्हाईट बॉल. $52 for 2. We are in the 5th over. Nilesh Golub is bowling. That's up towards long off. And he's dropped that one. Well, it was hit very high in the air. Long off. Had a lot of time to judge it. But it's difficult to judge the ball in the night sky. And plus, most of these players, they don't play regularly in floodlit environments. You know, so these are rare occasions. If we talk about regular players, professional players, they play very often in the night sky in floodlights, so they are used to spotting the ball. And plus, if you look at that, and that's a 6. Beautiful 6. Mid wicketच्या दिशेने मारलेला उत्तुंग एक षटकार. दोन्ही उत्तुंग फटके, एकावर जीवदान आणि एकावर षटकार. यावेळेस परत आता मिड विकेटकडे हा चेंडू मारला आहे, पण जवळच आहे आणि दुसऱ्या रनसाठी परत गेलेला आहे फलंदाज. त्यामुळे चांगली रनिंग. 62 झालेला आहे स्कोर 5व्या ओव्हरमध्ये. 5 ओव्हर समाप्त झालेले आहेत. 62 स्कोर म्हणजे 10 धावा निलेश गोलपने दिलेल्या आहेत त्याच्या ओव्हरमध्ये. 62 for 2 is the score after 5 overs for Smart Riders. I think that's a very healthy score. 62 for 2. And they have one more over to go. So today's proceedings have proved that if you have anything above 40, you can make a match of it. किसी ने 47 डिफेंड किया है, किसी ने 51 डिफेंड किया है, और जाहिर है किसी ने 133 डिफेंड किया है. पहिलं अर्धशतक या स्पर्धेमधलं शुकराज सूर्यवंशीचं, रायझिंग स्टारचा शुकराज. आणि पहिलं शतक या स्पर्धेचं टीमचं शतक रायझिंग स्टारनेच. Praveen is the new bowler now for Roaring Lions. 62 is the score. 6 more balls to go.
हवा में उछाल दिया है, स्क्वायर लेग के पीछे, थोड़ा स्क्वायर लेग और थर्ड फाइन लेग के बीच में 2 रन मिल जाएंगे इसी दौरान, कोई बात नहीं है. Out of the danger zone, that shot was in no man's land. Let's wait and see what kind of a line he's trying to bowl. Yes, again he's aiming at, he's got that is again a miss hit. Mid wicket comes charging on it and they go back for 2. Salman is back with the wicket keeping duties and wearing the wicket keeping gloves. फुल टॉस बॉल है, मिड विकेट की तरफ फील्ड किया है. अच्छी जजमेंट थी फील्डर की. रन आउट की कोशिश और ये आउट हो गए हैं. इट इज वेरी सरप्राइजिंग. बहुत ही कैजुअली उन्होंने रिटर्न किया क्रीज में आणि अत्यंत बेफिक्रीने वागलेल्यामुळे सलमानने चांगलं स्टंपिंग केलेलं आहे आणि एक बळी गेलेला आहे महत्वाच्या वेळेस स्मार्ट रायडर्सचा. आणि आता धावसंख्या फक्त 68 आहे. 2 चेंडू बाकी आहेत. 68, 68 for 3. 68 स्कोर है 3 विकेट के नुकसान पर. सतीश हंडोरे ये नए बल्लेबाज है कमिंग इन फॉर स्मार्ट राइडर्स. ओके सॉरी, ये गलत नाम बोला है हमने. फिर से एक बार बता देंगे आपको नए बल्लेबाज का नाम. पी सतीश कुमार ये नए बल्लेबाज है. 69 हो गया है स्कोर. उनहत्तर. बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, बीटिंग द बैट्समैन. So 69 is what they've put up Smart Riders. And Roaring Lions have to make 60 runs in 6 overs to win this one. 70 धावा आवश्यक आहेत रोरिंग लायन्सला. स्मार्ट रायडर्सने 69 धावा केलेल्या आहेत. 70 हे लक्ष्य आहे रोरिंग लायन्सच्या विजयासाठी. And a score of 70 needed for Roaring Lions, the team in blue, to win this one. The team in purple, Smart Riders, posting 69 for 3 in the 6 overs. Ladies and gentlemen, you're watching the Fleetguard Filtrim Premier League Season 10. This is the 10th year that this tournament is happening. It's a 6-over format of limited overs. And of course, Fleetguard Filters Private Limited is also celebrating 10 years, the 10th anniversary. So, the Fleetguard Sports Tournament is being conducted here at the PYC Club, Deccan Gymkhana. And sports matches in various disciplines happening, like carom, I guess other categories like badminton. These are available here at PYC. But of course, the star attraction of this tournament is this cricket league, which is known as the FFPL or Fleetguard Filtrim Premier League. It's a 5-day affair. Tomorrow we have the grand opening ceremony, today being a Sunday and the first day. We've directly started with the matches. So tomorrow is the opening ceremony. It's an official working day, so many people will be present in large numbers here. That is probably the reason to have the opening ceremony on Monday. At 3 o'clock we'll have opening ceremony, and then we'll have matches from 4 p.m. onwards. And apart from that, we'll have matches at 3 p.m. on all the other days. We have IPL kind of a format.
It's a league format. There are 14 teams. And ultimately, we'll have eliminator format as well. And the grand finals of this FFPL Premier League will be held on the 9th of November. That will be the only match that will be conducted on that day. On 9th of November. The official timing for that match is 5:45 p.m.
तो एक बार फिर से सभी का स्वागत। ये अंतिम 6 ओवर आज के दिन के खेल के यहाँ पर 70 रनों का लक्ष्य रखा है रोरिंग लायंस के सामने। 36 गेंदों में 70। फ्लिटगार्ड फिल्ट्रम 10वीं यहाँ पर जो सालगिरह है, एनिवर्सरी वो मना रही है। पीवाईसी क्रिकेट ग्राउंड एफएसटी 10th एनिवर्सरी क्रिकेट टूर्नामेंट। और पहला ओवर यहाँ पर पावर प्ले का इशारा करते हुए मनीष कुमार पांडे गेंदबाजी के साथ तैयार। ऋषिकेश पिसाल के लिए उनकी पहली गेंद। जितने मुकाबले हमने देखे, पहली मर्तबा जिस टीम ने वो बल्लेबाजी की है सारे मुकाबले में उन्हीं ने जीत दर्ज की है। ये आज का इक्वेशन रहा है, हाई स्कोरिंग दिन आज रहा है। कुछ लो स्कोर, 2 मुकाबले कुल मिला के 50 के आसपास वो भी डिफेंड किए पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। एकमात्र 50 सुकराज की तरफ से हमने देखा, 100 के ऊपर टीम को पहुंचाया था। सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो घर बैठे आनंद उठा रहे हैं। ऑफिशियल जो चैनल, यूट्यूब चैनल फ्लिटगार्ड फिल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर पीवाईसी क्रिकेट ग्राउंड पे। थोड़ी सी खेल में रुकावट, यहाँ पर जो बातचीत चल रही है ऑफिशियल, कुछ रूल्स रेगुलेशंस कंफर्म किए जा रहे हैं, कुछ क्वेरीज रिजॉल्व की जा रही है। यहाँ पर फील्डिंग यूनिट थोड़ी बातचीत चलती हुई। कल हम आपके साथ जुड़ेंगे करीबन 3 बजे जो है इस टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पर आयोजित की गई है पीवाईसी क्रिकेट ग्राउंड से। हम आपके साथ जुड़ेंगे यूट्यूब लाइव पे भी। और उसके बाद वो 6 मुकाबले लाइंड अप कल के दिन के खेल में। 5 दिन का ये पूरा टूर्नामेंट, आज का ये पहला दिन। 7वां मुकाबला। और कुछ बातचीत के बाद ऑफिशियल उनकी जगह लेते हुए गेंदबाज उनकी गेंदबाजी मार्ग पर मनीष कुमार पांडे। इस तरह से जब रुकावट आती है ना, वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन भी भंग हो जाता है बल्लेबाज का। अभी शुरुआत तो नहीं हुई है लेकिन वो थोड़ा सा, जब आप समय बिताते हैं करीबन 5 से 7 मिनट में देख रहा हूँ इंतजार किया जा रहा है। वो पहली गेंद का, वो पावर प्ले का ओवर लिया जा चुका है। मनीष कुमार पांडे पहली गेंद के साथ। ऋषिकेश पिसाल के लिए उनकी गेंद। कलनेव का इस्तेमाल देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से फ्लिक किया है गैप में वो गेंद, और कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। पैरों पे गेंद और इट जस्ट लाइक ए किक विद अ चेरी ऑन टॉप। इंतजार में रहते हैं, ताक में रहते हैं बल्लेबाज पैरों के ऊपर। और जिस तरह से वो कलयों का इस्तेमाल किया था, वो जितना खूबसूरत वो आवाज आई थी गेंद और बल्ले का जब संपर्क हुआ था। पहली गेंद पर वो चौके के साथ खाता खोला है, 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। ये दूसरी गेंद और बल्ला चला है, ये भी हवा में गेंद है और बिल्कुल बाउंड्री रोप के बाहर। यहाँ पर 6 रन। ताबड़तोड़ शुरुआत यहाँ पर ऋषिकेश पिसाल, पावर प्ले का ओवर और 2 गेंदों में जड़ दिए 10 रन। 1 चौका 1 सिक्सर। थोड़ी सी लाइन और लेन बिगाड़ने की कोशिश मनीष कुमार पांडे। देखने लायक बात, इस प्रकार से कम बैक करते। अगली गेंद के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर, ये अच्छी गेंद। इस बार वो थोड़ी सी लेन जो थी वो गुड लेन गेंद, इस कारण से वो बल्लेबाज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। गति अच्छी, शायद कुछ और स्ट्रोक बना चुके थे। डॉट गेंद, 3 गेंदों में 10 रन। 60 रन 33 गेंदे, जो इक्वेशन यहां से। यहाँ पर संपर्क ठीक नहीं है। फाइन ले के फील्डर गेंद के नीचे जरूर आने की कोशिश, लेकिन गेंद को वो कैच नहीं कर पाए, कैच को पूरा नहीं कर पाए।
ये थोड़ा सा मसला रहा है आज सभी टीमों की। अगर फील्डिंग देखें समझ सकते हैं पहला मुकाबला और एक टीम खेल रही है वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा सभी के लिए। वो फील्डिंग करना, वो कैचेस पकड़ना, उसके लिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जैसे जैसे आप खेलोगे, मुकाबले खेलेंगी ये टीमें, वो बेहतर प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। ये हवा में है, काफी देर तक हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और बहुत अच्छा जज कैच। समय मिला, दस्तूर था और विकेट की तलाश में थी यहाँ पर। मैं वो जो बात कर रहा था गेंदबाज की कमबैक की, वो मनीष कुमार पांडे ने वो कमबैक किया है। एक और बड़ी स्ट्रोक की कोशिश, इस बार बल्लेबाज अलग थे सलमान शेख, उनकी पारी की पहली गेंद और पेवलिंग की तरफ जा रहे। 11 पर पहला झटका रोरिंग लायंस 5 गेंदों के बाद। कोशिश जारी थी क्योंकि वो पावर प्ले का ओवर, आखिरी गेंद, शायद ताकत लगी थी लेकिन वो गेंद ऊपर ज्यादा गई, वो डिस्टेंस मिला नहीं लॉन्ग ऑन के फील्डर। अच्छा जज कैच वहां पर, क्योंकि कभी भी आसान नहीं रहता वो बाउंड्री रोप को देखना, एलिवेशन को, और जो फ्लड लाइट्स है उसका भी असर अलग रहता है। अनिल दरेकर आए नए बल्लेबाज, दाहिने हाथ के बल्लेबाज। आखिरी गेंद इस ओवर की मनीष कुमार पांडे लेकर तैयार। थोड़ा सा फील्ड सेट कर रहे हैं, हौसला बढ़ता है विकेट की पतन के बाद। चौका सेक जरूर लगा लेकिन वो वापसी की है, उन्होंने विकेट छटकाया अपनी टीम के लिए। लेग स्टंप से बाहर, वाइड। क्या बेहतर गेंद डाल सकते थे विकेट की पतन के बाद, वो दबाव जारी रखने के लिए। 12 पर 1 अब। अनिल दरेकर नॉन स्ट्राइक ग्रीन पर है, ऋषिकेश पिसाल 11 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक चौका एक सिक्सर, वो आगाज कर दिया है, वो शंखनाद किया है ऋषिकेश पिसाल ने। जरूरत इस तरह की पारी की, और यहाँ पर देखिए खूबसूरत वो कवर ड्राइव, बिल्कुल कोई मौका नहीं, एक्स्ट्रा कवर के बीच में से वो गेंद जो है वो बाउंड्री रोप की तरफ पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। ये ड्रामेटिक ओवर था, विकेट आया लेकिन साथ में 16 रन भी आए रोरिंग लायंस के लिए। अनिल दरेकर ने वो चौका लगाया आखिरी गेंद पर, उनकी पारी का पहला चौका, और कुल मिला के वो दूसरा चौका था उस ओवर का। साथ ही में उनको एक बड़ा 6 भी आया था। इक्वेशन जो बन चुका है 54 रन चाहिए अब 30 गेंदों में, 54 रन इन 30 बॉल्स। आस्किंग ग्रेड देखेंगे यहाँ पर, 5 ओवर में 54 यानी 11 रन प्रति ओवर बन सकते हैं, क्योंकि रॉयल लायंस ने वो थोड़ी सी रोर की है। पहली ओवर में 16 रन। ऋषिकेश पिसाल, अनिल दरेकर स्टार्ट मिल चुकी है। देखने लायक बात रहेगी किस प्रकार से स्टार्ट को कन्वर्ट करते हैं एक अच्छी पारी में। क्या वो इक्वेशन को तोड़ पाएंगे, वो पहली टीम या बन पाएंगे जो चेस करते समय जीतेगी, क्योंकि 5 मुकाबले पहले बल्लेबाजी टीम का बोलबाला, 5 में 5 टीम जो पहले बल्लेबाजी की है उन्होंने जीता है मुकाबला। ये आखिरी मुकाबला आज के दिन के खेल की मैं बात कर रहा हूँ। गेंदबाजी में यहाँ पर नीलकंदन तैयार है। ऋषिकेश पिसाल रहेंगे स्ट्राइक रेन पर। फील्ड को थोड़ा देखते हुए थोड़ी सी बातचीत ज्यादा हो रही है इस मुकाबले की अगर हम बात करेंगे। बिजी रखा है दोनों भी ऑफिशियल्स को अगर इस मुकाबले की हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए वो थर्ड मैन की तरफ गेंद गई है, बहुत फाइन वो गेंद गई थी, क्योंकि कोई मौका ही नहीं था उस थर्ड मैन के फील्डर के लिए। वो 30 गज के दायरे के अंदर वो छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रूम नहीं दे सकते, यहाँ पर गेंद नहीं डाल सकते आप। यहाँ पर अगर बल्लेबाज ने जोर से बल्ला भी चलाया, किनारा भी लगेगा ना, वो पीछे जाएंगे रन्स, मुश्किल वहां पर रन्स रोकना।
फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी करनी होगी। अगर गेंदबाज की बात करेंगे, पहली गेंद पर वो चौका, ये कुल मिलाकर ये दूसरा चौका था ऋषिकेश पिसाल का। ऋषिकेश पहुंचे 15 पर, रोरिंग लायंस टीम पहुंची 20 रन, 1 विकेट। 29 गेंदों में चाहिए अब 50 रन, 50 रन इन 29 बॉल्स। ये यहाँ पर मिस टाइम्ड है, लेकिन थोड़ी गेंद आगे गिरी और मुझे ऐसे लगा कि वो शायद थोड़ा सा लेट रिएक्ट भी किया था। जो कवर के फील्डर थे वो थोड़ा सा लेट रिएक्शन, पहुंच नहीं पाए गेंद तक। ये थोड़ा सा जजमेंट का सवाल आता है ना, जब वो गेंद किस गति से आती है। कभी कभार जो है गेंद हवा में थोड़ी सी घूमती भी है, तो उसके साथ तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। वो जजमेंट आप में चाहिए जब आप 30 गज के दायरे के अंदर खड़े रहते हो या बाउंड्री लाइन पर। ये खराब गेंद है, ये मुश्किल रोकना। जी आप बिल्कुल, काफी फाइन खेला था। टिप फाइनल की दिशा में ये चौका आता हुआ, लेग स्टंप पे गेंदबाजी यहाँ पर नहीं गेंदे डाल सकते आप। ऋषिकेश पिसाल चाहेंगे कि यहाँ पर गेंदे आए, क्योंकि वो ताक में रहेंगे। ये टिपिकल टेनिस क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स, ये फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, हमेशा वो बल्लेबाज चाहता है कि वहाँ पर गेंदे आए, वो छोटी गेंदे आए, वो पैरों के ऊपर गेंदे आए, भरपूर फायदा उठा सकते हैं। 1.326 पर 144 रन चाहिए अब 27 में। यहाँ पर देखिए क्या खूबसूरत है, लॉफ्टेड, कोई मौका नहीं, एलिवेशन मिला, डिस्टेंस, और पूरा ये गेंद देके जा रही है 6 रन। ये बहुत बढ़िया पारी खेल रहे हैं चेस में ऋषिकेश पिसाल, इम्पैक्टफुल पारी, 27 रन पे पहुंचे 8 गेंदों में। और शायद मुझे लगता है ये हमें देखने को मिल सकती है पहली टीम चेस करते हुए जीतने वाली। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि क्रिकेट का खेल है, जब तक आखिरी गेंद ना डाली जाए वो कहना मुश्किल है। ये मैजिक ओवर भी आएगा, उसमें अगर विकेट चले गए तो फिर वो दिक्कतें बढ़ सकती है। लेकिन जो स्टार्ट मिली है, जो इंटेंट दिखाया है अभी तक, वो बहुत बढ़िया। गैप में गेंद नहीं रोक पाए वो कवर के फील्डर, लॉन्ग ऑफ के फील्डर को डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जाकर गेंद को रोकना पड़ा। 18 रन आए इस ओवर से। नीलकंदन है दौर के समाप्ति 34 पर 1। अब चाहिए 36 रन 24 में। अगर स्कोर देखेंगे ना आप, करंट रेट और आस्किंग रेट, बहुत अंतर, बहुत तेज गति से जा रही है रोरिंग लायंस। 36 रन 24 गेंदे यानी 9 रन प्रति ओवर, और फिलहाल जो रन बने ना वो 17 रन प्रति ओवर। ऋषिकेश पिसाल का जिसमें योगदान देखिए, 9 गेंदों में 28 रन, 3 चौके, 2 सिक्सर उसमें शामिल, 311 का स्ट्राइक रेट है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है अनिल दरेकर, 2 गेंदों में 5 जिसमें 1 चौका शामिल। पारी की जो शुरुआत की थी यहाँ पर अनिल ने चौके के साथ। और जो पिछले ओवर देखेंगे 2 ओवर, मनीष ने 16 रन दिए, नीलकंदन ने 18 रन दिए, और पूरी तरह से इस मुकाबले में रोरिंग लायंस की वापसी हुई है, क्योंकि ये बड़ा टोटल है जिसमें काउंटर अटैक रोरिंग लायंस की टीम की तरफ से। विकेट कॉलम में एक है, लेकिन वो मायने नहीं रखता, क्योंकि 6 ओवर का खेल है। यहाँ पर ताबड़तोड़ रन बनाने की कोशिश में विकेट गिर सकता है, लेकिन वो रन गति, वो स्ट्राइक रेट बल्लेबाज का, वो बहुत मायने रखता है। पार्टनरशिप भी अगर देखेंगे विकेट की पतन के बाद 7 में 23, तो ये बढ़िया रिकवरी है। विकेट खोई लेकिन वो रन गति यहाँ पर कायम रखी है। इन दोनों ने मिलके अभी तक 4 चौके लगाए इस साझेदारी में, 2 बड़े 6। ऋषिकेश पिसाल 1 6 आया है इस साझेदारी में, पहली ओवर में वो 6 आया था ऋषिकेश पिसाल के बल्ले से। 300 के ऊपर का स्ट्राइक रेट, इस तरह से वो बल्लेबाजी चाहिए। इंतजार किया, बैकफुट पर जाकर, डीप में एक फील्डर मौजूद है, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर बहुत बड़ा एरिया है, मौका रहेगा। अगर थोड़ी सी भी फंबल हो जाती है वो बल्लेबाज के पास दूसरे रन के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए अच्छा कलेक्शन और थ्रो भी देखिए, क्योंकि वहां पर अगर थ्रो करना है वो ताकत के साथ, और वो जजमेंट चाहिए ताकि सही हाइट पे वो थ्रो पहुंचे।
विकेट कीपर या नॉन स्ट्राइकर की तरफ। एक बार फिर से बिजी रखा है उस फील्डर को। अच्छी फील्डिंग देखिए, गेंद के पीछे आए, वो गैप नहीं छोड़ा। अगर गेंद हाथ से चिटक जाती है तो शरीर पे टकरा सकती है। क्रिकेट में जो बेसिक्स सिखाए जाते हैं फील्डिंग करते समय वो फॉलो करते हुए। मौका था यहाँ पर, गलत लाइन को खेल बैठे। धीमी गति की गेंद, ऐसा लगा कि शायद वो गति से बीट हुए अनिल दरेकर। बहुत दूर गेंदें डाल रहे हैं, वहां पर फील्डर भी मौजूद। इस बार भी फील्डिंग देखिए, बहुत चुस्त, अलर्ट, प्रेजेंस ऑफ माइंड। रन्स बचा रहे अपने टीम के लिए। थोड़ी सी दूर गेंदें डाली और कामयाब भी हुए इस ओवर में दत्तात्रेय। इस बार दिशा थोड़ी सी अलग थी, बेहतर रिजल्ट इस गेंद के ऊपर। पूरे 4 रन, कोई मौका नहीं वहां पर। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जो है बाउंड्री लाइन को पार कर चुकी है। ऋषिकेश पिसाल जो है ना वो थमने का नाम ले रहे। इस तरह से बल्लेबाजी हम देखते हैं इंग्लिश प्लेयर, वो केवल बाउंड्रीज और 6 में वो डील करते हैं। यहाँ पर देखिए क्रीज का इस्तेमाल, फील्डर मौजूद और इस बार कैच को पकड़ा है। कुछ इंचेस दूर थे बाउंड्री रोप से, लेकिन बहुत अच्छा कैच है। सेट बल्लेबाज ऋषिकेश पिसाल का ये विकेट। 33 रन की है, ताबड़तोड़ पारी का अंत होता हुआ। 12 में 33, 4 चौके 2 सिक्सर। पवेलियन की तरफ जा रहे हैं, बातचीत कर रही नए बल्लेबाज के पास, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत दिलाई है 29 रन चाहिए यहाँ से 18 में। 18 में बनाए 41, 2 विकेट के नुकसान पे। लेकिन वही है ना, जब नए बल्लेबाज आएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल बन सकता है। फ्लड लाइट में वो चेस। 18 में 29 चाहिए अब। चौथा ओवर, सुपर ओवर, मैजिक ओवर। यहाँ पर फील्डिंग टीम के पास भी वो मौका रहेगा कि विकेट छटकाए, वो 5 रन का थोड़ा सा वो दर्द दे दे सामने वाली टीम को, ताकि वो 5 रन ज्यादा बनाने पड़े हर एक विकेट के साथ। ये महत्व बहुत ज्यादा। अब देखिए वो थोड़ी सी रन रेट में भी एक गिरावट आ सकती है। जिस गति से वो खेल रहे थे, बल्लेबाजी कर रहे थे ऋषिकेश पिसाल, 33 रन की जो पारी 12 गेंदों में, जो बात मैंने बोली। मोनिक टावरे आए हैं नए बल्लेबाज, और जो मैजिक ओवर के लिए यहाँ पर तैयार है बालामणिगंडन। इंतजार किया है, ये सेंसिबल क्रिकेट है। पहला रन पूरा किया है, गैप में गेंद है, बहुत बढ़िया एफर्ट वहां पर फील्डर द्वारा, सराहना की जाती हुई बाकी टीम मेंबर्स से। 2 गुना 2, 4 रन दी जाएगी ये गेंद, क्योंकि ये है मैजिक ओवर। अठारह में 29 चाहिए थे, 4 रन कम कर दीजिए, 25 चाहिए अब 17 में। ये वाह फायर, हवा में हेलीकॉप्टर उड़ाया है और बहुत दूर भी गया है। संपर्क जितनी जरूरत थी वो बाउंड्री रोप को क्लियर करने के लिए। पूरे 6 गुना 2, 12 रन, डजन भर रन ये दे के गई है गेंद। ये बहुत क्रूशल ओवर। अनिल दरेकर अब जो दारोमदार उठा रहे अपने कंधों पे। सेट बल्लेबाज का विकेट पिछली ओवर की आखिरी गेंद, लेकिन ये मैजिक ओवर। रोरिंग लायंस पूरी तरह से रोर। ये भी अच्छा शॉट है, कम से कम 1 गुना 2 बिल्कुल मिलेंगे। जी हाँ, हल्के हल्के कदमों से वो रन पूरा किया है। ग्यारह चाहिए अब 15 में। 11 रिक्वायर्ड इन 15 बॉल्स। 3.359 पे 2। बिल्कुल जरूरत नहीं थी, सीधा वो गेंद गई थी। फील्डर शायद वो ठीक से कलेक्ट करते तो मौका बन जाता। वो देखिए यही छोटी चीजें रहते हैं ना, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड। गेम में बने रहने के लिए ये जरूरत था फील्डिंग साइड के लिए विकेट, क्योंकि वो 5 रन ज्यादा बनाने पड़ते, पेनल्टी हो जाती बल्लेबाजी टीम को। 11 में 11 चाहिए अब 14 में। ये भी गैप में कम से कम 2 गुना 4। जी हाँ बिल्कुल, दूसरे के लिए वापस आएंगे और पूरा भी करेंगे जब तक थ्रो आती नॉन स्ट्राइकर की तरफ।
इस गेंद पर भी आए पूरे 4 रन। मोनिक तावरे, अनिल दरेकर, बहुत बढ़िया काम। 7 रन चाहिए अब 13 में। 7 रिक्वायर्ड इन 13 बॉल्स। ये गैप में गेंद है और इसी के साथ इस मुकाबले को जीता है। रोरिंग लायंस won दिस मैच बाय 8 विकेट्स। 4 ओवर में, और पहली टीम यहाँ पर राहुल हमें देखने को मिली है जो चेस करते समय जीती है। वो थोड़ा सा इक्वेशन चेंज किया है आज के दिन के खेल का। रोरिंग लायंस, वो नाइट में भी वो थोड़ा सा दहाड़े है लायंस। 71 रनों का वो लक्ष्य था, लेकिन 4 ओवर में 12 गेंदें बची थी, लेकिन वो पावर प्ले का ओवर जिसमें काम तमाम कर दिया। अनिल दरेकर, मोनिक तावरेल, उसके पहले वो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। ऋषिकेश पिसाल की 33 रन की वो पारी 12 गेंदों में वो रंग लाई उनकी टीम के लिए। वो प्लेटफॉर्म सेट किया जीत का, और दोनों भी टीम्स के प्लेयर जो है एक दूसरे के साथ वो सेकेंड्स, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खेल भावना दिखाते हुए, और एक तरफ थोड़ी सी खुशी, दूसरी तरफ थोड़ा सा गम। लेकिन ये पहला मुकाबला है, बहुत कुछ एक्शन बाकी। इसी के साथ आज के दिन का खेल, जो मैचेस का जो हाल है वो यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन है वो बाकी इस आखिरी मुकाबले का। कुछ ही क्षणों में मेरे जो साथी कमेंटेटर है राहुल, वो कूच करेंगे यहाँ पर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए, और उसी के साथ ये समाप्ति भी रहेगी आज दिन की खेल की। कल दोपहर को 3 बजे ओपनिंग सेरेमनी, जो लाइव टेलीकास्टिंग है मेरी नॉलेज से करीबन 2:45 पे शुरू हो जाएगा। फ्लिटगार्ड फिल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल पे हम आपके साथ जुड़ेंगे। मुकाबले यहाँ पर जो लाइव खेले जा रहे हैं, पीवाईसी क्रिकेट ग्राउंड पुणे, बहुत कुछ एक्शंस बाकी। 4 दिन अभी भी बाकी। आज के दिन का पहला दिन का ये खेल मैचेस यहाँ पर खत्म होते हुए। कमेंट्री बॉक्स से मैं कमेंटेटर योगेश इजाजत लेता, और आगे की जो प्रोसीजर है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन मेरे साथी कमेंटेटर राहुल के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ।
Okay. Well, ladies and gentlemen, it is curtains time of day one of the Fleetguard Filtrim Premier League 10th season. And today, the last match of day one was an exciting one with a twist in the tail. In all the 6 earlier matches, the team that batted first won, but Roaring Lions is the only team on day one that has chased down the total of 70 that was required, a target of 69 that was put up by Smart Riders, and it is only because of the man of the match performance by a player who scored 33 runs in 12 balls and also took 1 wicket for just a few runs, and that man is the chief contributor in Roaring Lions victory over Smart Riders. He's none other than Ruturaj Rushikesh Pisar. To present the award to him, we have Mr. Prakash Thorat, sir, who will be doing the honors. Rushikesh Pisar, winner of the man of the match. And the Roaring Lions, the first team today to chase and win. And let's hope tomorrow we'll have mixed results. And now the trophy of the man of the match to Rushikesh Pisar. He is already wearing the 10th anniversary cap. And last but not the least, a special Diwali gift for the man of the match. So many congratulations to Roaring Lions. A big round of applause and commiserations for Smart Riders as well for putting a good performance. Well played, Lions. Well played, Rushikesh. Thank you so much, Prakash Thorat, sir. Ladies and gentlemen, tomorrow 3 o'clock we have the inauguration of the Fleetguard Sports Tournament and the Fleetguard Filtrim Premier League. We'll join you back again at 3 o'clock on our official YouTube channel, Fleetguard Filters Private Limited. Until then, from the PYC Cricket Ground for Fleetguard Private Limited, this is Rahul Chirsagar, your commentator and host for the next 5 days. Hope to see you again at 3 p.m. tomorrow. God bless. Love you. Good night. Shabba khair.